آپ نے کچھ سوچا بھی ہے؟ جائیں گے کہاں؟ تم حوصلہ رکھو، اللہ بڑا کارساز ہے بیٹے، کوئی نہ کوئی شد مل جائے گی. اب دیکھیں نا خواجہ صاحب، صرف پولیس نہیں ساری سوسائٹی کرپٹ ہے. ٹیکس والے کو بندہ اپنی خوشی سے ₹1,00,000 دے کر ₹10,00,000 بچا لیتا ہے، اور رات کو دونوں فیملیز مل کر کھانا کھاتی ہیں، کوئی شکایت کسی کو نہیں ہوتی، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جی جی. اب پولیس والے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مشکیں باندھ دیتا ہے اور ₹500 لے کر کھول دیتا ہے. جی جی جی. اب دیکھیں نا سر، 100 آدمیوں کے سامنے سرے بازار قتل ہو جاتا ہے. جب پولیس تفتیش کے لیے پہنچتی ہے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میری تو آنکھیں بند تھیں. مجبوراً پولیس کو اپنے گواہ لانے پڑتے ہیں. جی. بس یہی ہوتا ہے نا سر، جب اصلی گواہ سامنے نہیں آتا تو مجبوراً نقلی لانے پڑتے ہیں. آپ کے کیس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں، انشاءاللہ انصاف ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں. خدا حافظ. جی سر، یہ کرائم رپورٹر اعجاز علی ہیں، ہمارے نئے انچارج. بڑا نام سنا تھا آپ کا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تھینک یو سر. بیٹھیں. ارے صاحب، من آنم کی مندانم، کیا ہم اور کیا ہمارا نام. آئے تھے کسی کام سے، شفیع صاحب نے بتایا آپ بیٹھے ہیں، میں نے سوچا ایک پن دو کاج آپ کی نیاز حاصل کرتا چلوں. بے نصیب. ماشاء اللہ، درس و تدریس کا سا انداز ہے آپ کا، نستعلیق. آپ کا لہجہ پولیس کا نہیں لگتا. آپ کی قابلیت کا شعرہ مجھ تک پہنچ چکا تھا، اس لیے مجبوراً جبڑوں پہ جبر کر کے یہ لہجہ بنایا. اچھا فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ کار لائق. سر وہ اٹیسٹیشن کا چھوٹا سا کام تھا کسی کا، باہر ہی باہر ہو گیا. ارے صاحب، بے شک باہر ہی باہر ہو جائیں کام آپ کے، لیکن کبھی اندر آ کے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں. سر وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کرائم رپورٹر تھانے کے انچارج سے کب تک بچے گا؟ اچھا، آپ کے لیے اچھی سی چائے منگوائی جائے؟ نہیں سر، چائے بھی پی کر آیا تھا. شیور؟ ڈیو رہی. شیور. اب اجازت دیں. اجازت صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. شکریہ آپ کا بہت بہت. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. سر، یہ بندہ اپنے کسی اخبار کے ادبی صفحے کا رپورٹر بن جائے تو ٹھیک ہے، کرائم رپورٹری کے لائق نہیں ہے سر. کیوں؟ سر سنا ہے کہ اس نے آج تک تھانے سے بھتہ وصول نہیں کیا. کرائم رپورٹر ایسے ہوتے ہیں کہ سر؟ ایسا بھی ہوتا ہے محمد حسین. اگر کچھ ایسے لوگ نہ ہوں تو یہ سوسائٹی کبھی نہیں چل سکے گی. اگر ہمارے پاس سامان نہ ہوتا تو آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتے. ماسٹر صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. نہیں، 1-2 روز میں انشاءاللہ انتظام ہو ہی جائے گا. نہیں ماسٹر صاحب، آپ 1 دن نہیں 100 دن رہیں، جب تک آپ کا جی چاہے آپ رہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے ماسٹر صاحب، وہ جو حال ہے سو حاضر ہے، لیکن یہ ایک دم شہر سے ادھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی تسلی سے بیٹھ کر بتائیں گے. اچھا، تو پھر چلیے سامان اٹھائیے. السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں آؤ بیٹا، آؤ آؤ ادھر. ہاں. کس بات کی درخواست ہے؟ ہم نشابہ کو اس محلے سے نکالنا چاہتے ہیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ دستخط کر دیں. ہم سب نے کیے ہیں، بلکہ سارے محلے نے دستخط کر دیے ہیں. بالکل، سب کی بہو بیٹے کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے آپ لوگوں کی عزت کو خطرہ ہو. ارے اعجاز صاحب، آپ تو صبح کے گھر سے نکلے، رات گئے لوٹتے ہیں، آپ کو کیا معلوم
اس کی ایک ایک حرکت پہ ہماری نظر ہے. مثلاً کوئی ایک ثبوت, کوئی ایک مثال. مثلا کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ چھوڑیے اعجاز صاحب, ایسی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. بازار کی اور محلے میں آ جائے نا تو کوئی شریف نہیں بن جاتی. دیکھیے آپ لوگوں کی ساری گفتگو شک کی بنیاد پر ہے. ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں. میں آپ لوگوں کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ طائب ہو چکی ہے. اسے چین سے رہنے دیں. اس کی ماضی کی سزا مت دیں اسے, مت چھینے اس کی چھت اس سے. آپ خود تو چھڑے آدمی ہیں, آپ کو ہمارے گھروں کی عزت کی کیا پرواہ. اوہو, آج تک میں نے کسی کے گھر میں جھانکا ہے؟ دیکھو اعجاز صاحب, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا. ہمیں تو نوشابہ کی موجودگی سے خطرہ ہے. حامد صاحب یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کو دستخط کرنے میں اعتراض کیا ہے؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ارے رہنے دیں, اٹھے صاحب. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی اس کے کاروبار میں شریک ہے. حامد صاحب تسلی اعجاز صاحب, آپ کی ہمسائی ہے, شک تو ہوگا. جو آپ لوگوں کے جی میں آئے کیجئے. ارے کہ چلو یار دیکھیں گے کہیں گے. اچھا, سیٹلائٹ ہال میں 3 کمرے, ڈرائنگ ہے, ڈائننگ ہے, لاؤنج ہے, اٹیچ باتھ ہے, ایک بنگلہ خالی نہیں. اچھا, ریلوے سوسائٹی میں اوپر نیچے 4 کمرے, لاؤنج ہے, اٹیچ باتھ ہے, کار پورچ ہے نہیں. اچھا, تو اسی طرح خدا آپ کا بھلا کرے بروری روڈ پر. دیکھیے جناب, مجھے سوسائٹی میں بنگلہ وغیرہ نہیں چاہیے. مجھے تو بس شریفوں کے محلے میں 2 کمرے کی چھت دلا دیں. اچھا, تو پھر آپ ایسے کریں, کل آ جائیں, میں ادھر ادھر سے پتہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی بہتر, شکریہ. خدا حافظ. سونے منڈے کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں نوشابہ. آنٹی, پھر وہی آنٹی. آنٹی کو آنٹی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ رشتے بنانا ضروری ہے کیا؟ ہر بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہو. خیر جانے دو. یہ بتاؤ کہاں تک پہنچا تمہارا کیس؟ میرا مطلب ہے بلڈنگ والوں کا کیس تمہارے ساتھ. اب سنا ہے ڈی آئی جی کے پاس جا رہے ہیں درخواست لے کر. یہ بھی کر دیکھیں, آئی جی کے پاس چلے جائیں. میں نکلوں گی تھوڑی یہاں سے. کیوں سجاتی ہو بیچاروں؟ ہاں, تم مگر کہو نا, ابھی اور اسی وقت یہ فلیٹ خالی کر دو. کہہ کر تو دیکھو. میں کیوں کہوں؟ میرا کیا بگاڑتی ہو آنٹی؟ پھر وہی آنٹی. اجاز, بہت بہت شکریہ. کس بات کا شکریہ؟ میرے خلاف دستخط نہ کرنے کا. مجھے معلوم ہے محلے والے درخواست لے کر تمہارے پاس گئے تھے, لیکن تم نے میرے خلاف دستخط کرنے سے انکار کر دیا. ہاں. کیوں کرتا؟ اگر میں کسی کو آباد نہیں کر سکتا تو مجھے برباد کرنے کا بھی حق نہیں. سونے باپ, مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد اس فلیٹ میں کون آئے گا, لیکن میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی, کبھی نہیں بھولوں گی. کیا مطلب کبھی نہیں بھولوں گی؟ کیا تم؟ ہاں, میں آج یہاں سے شفٹ ہو رہی ہوں, شام تک چلی جاؤں گی. شکست؟ نہیں, اگر میں یہاں رہی نا تو یہ لوگ تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. تمہاری موجودگی مجھے ایک اچھے پڑوس کا احساس دلاتی. میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا نوشابہ. آنٹی کہتے ہوئے منہ دکھتا ہے کیا تمہارا؟ کمینے. آنٹی, پروفیسر صاحب,
जामिया आप कैसे हैं सर आप? ठीक हो? आप यहाँ कैसे? क्या तुम इसी बिल्डिंग में रहते हो? जी सर, ये 11 नंबर फ्लैट है मेरा। अजीब इत्तेफाक है, 7 वाला फ्लैट मैंने किराए पे लिया। बड़ी खुशी हुई सर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर एजाज मियां। कोई अपना तो है। कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। जीते रहो, फिर मुलाकात होगी। वैसे हम अब तुम्हारे उस्ताद ही नहीं, पड़ोसी भी हैं। सर मेरी खुशबख्ती है, लेकिन सर आप इस शहर में कैसे? ये एक लंबी रुदाद है, फिर कभी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एजाज मियां। कैसे मिजाज है सर? दुआ है। कहाँ हो बेटे? इतने कुर्बत, इतने फासले, दीवार से दीवार जुड़ी है, तुम नजर ही नहीं आए ज्यादा। बस सर वो ड्यूटी का नेचर कुछ इस तरह का है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कई बार दस्तक देने को दिल चाहा, लेकिन फिर क्या सर फिर सोचा कहीं आपका वक्त बर्बाद ना हो, वक्त बेवक्त। एजाज मियां, तुम मेरे बड़े चहीते शागिर्द हो और तुम्हारे लिए मेरे घर के और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले। और फिर अब हमारा वक्त ही क्या, फुर्सत ही फुर्सत है मियां। सर वो आप रिटायर हो गए क्या? हाँ बेटे, तुम ऐसा करो कि शाम की चाय हमारे साथ पियो। शाम को तो चलें, ठीक है सर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर। कदो गेसू में पैसों को कन की आजमाइश है, और जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। वाह, कुछ यही रुदात है आजकल हमारी एजाज मियां। यकीन कीजिए प्रोफेसर साहब, आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज, एक एक कदम पर मेरे लिए रहनुमा साबित हो रहा है। अगर आपकी रहनुमाई हासिल ना हुई होती तो मैं बहुत बड़ा जाहिल रह जाता। मैं कभी गालिब को न समझ सकता, मैं कभी जिंदगी को न समझ सकता। गालिब मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया, लेकिन एजाज मियां समझा सबने नहीं। समझता वही है जिसमें कुछ सूझबूझ होती है, और जिसने गालिब को समझ लिया वह जिंदगी को समझ लिया। जी सर। अब्बा जी, चाय ले आओ बेटे। चीनी? जी, 1 चम्मच। शुक्रिया। शुक्रिया बेटे। हम घर में 2 ही अफराद हैं एजाज, एक मैं और एक मेरी बेटी इरफाना। जी। तो क्या बात हो रही थी? सर वो उस रोज तो बात बीच में ही रह गई थी। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ किस सिलसिले में शिफ्ट हुए?
वो बात ये है कि सब मैं टेलीफोन सुनकर आता हूँ, घंटी बज रही है, लगता है बंद हो गया। टेलीफोन है तुम्हारे पास से जाकर? जी सर, अगर आपको जरूरत हो तो यहाँ लाइन खिंचवा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपना टेलीफोन नंबर दे दो। ये लीजिए सर, शुक्रिया। टेलीफोन नंबर लिखा है इस पर। शुक्रिया। आपने टेलीफोन नंबर के लिए कहा था ना मैडम, तो ये एजाज मियां जो हैं, ये मेरे पड़ोसी भी हैं और स्टूडेंट भी। ये इन्हीं के घर का नंबर है, यहाँ पैगाम दिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा किया आपने, अब मैसेज देने में काफी सहूलत हो जाएगी। वैसे पैगाम तो मिल ही जाएगा ना? जी जी। अक्सर लोग नहीं, एजाज मियां बड़े नफीस आदमी हैं। ये कार्ड आप अपने पास रख लें, मैंने नंबर नोट कर लिया। देखिए, एक दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी ये नेक काम हो जाए उतना ही अच्छा है। आप इत्मीनान रखें, हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा। एजाज मियां, अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे मिला? ठीक है, आइए अंदर आइए। नहीं, इस तो मैं जल्दी में हूँ। कहना यह था एजाज मियां कि एक जगह मैंने तुम्हारा टेलीफोन नंबर दिया है, पैगाम लेने या मुझे घर से बुलाने में कोई कबाहत ना हो तो। शर्मिंदा कर दें सर, आप हुक्म करें तो इंस्ट्रूमेंट उठा के आपके फ्लैट में रखवा दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस ऐसा करें कि अगर आप घर में हो तो पैगाम ले लें, या मैं हूं तो मुझे बुला लें। सर आप ऐसा करें कि फ्लैट की चाबी रख लें। मेरा मतलब है मैं सुबह जाता हूँ तो रात को वापस आता हूँ। इस तरह अगर टेलीफोन आए तो आप खोल के सुन लिया करें। देखिए भैया, चाबी की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, बस आप ये करें कि अगर टेलीफोन आए तो पैगाम नोट कर लें। इसका मतलब ये है सर कि मुझे आप पे और आपको मुझ पे एतबार नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई पैगाम मिस ना हो। फिर क्या बात है सर? सर वैसे भी मेरे घर में रुपया पैसा सोना चांदी जैसी कोई चीज नहीं, इसकी वजह से घरों पे ताले पड़ जाते हैं। तो फिर ये फ्लैट में ताला क्यों डाल रखा है? ये तो सर एक रस्म पूरी करता हूँ। शायद मेरा घर अंदर से इस काबिल ही नहीं सर कि आपको ले जाने की दावत दी जाए। अगर ये बात है मियाँ, तो हम जरूर अंदर चलेंगे। चलो आइए। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद है। देख लीजिए सर, घर की इस हालत की वजह से मैंने कभी आपको घर के अंदर तशरीफ लाने की दावत नहीं दी सर। ये कोई अजीब बात नहीं है एजाज मियाँ, मुजर्रद जिंदगी ऐसी ही होती है और हम भी इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं। हमारी जवानी भी बहुत मुंतशिर और बेतरतीब गुजरी है। मुजर्रद जिंदगी और बेतरतीबी लाजिम व मलजूम है। लेकिन सर मैं तो कुछ ज्यादा ही बेतरतीब सा हो गया हूँ। बेतरतीबी ना होती तो तरतीब कैसे वजूद में आती? तो चाबियां मुझे दो। जी सर, ये लीजिए सर। अब चाबियां मैं अपने पास रखूंगा। अच्छा, जाता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो जी, क्या एजाज बोल रहा हूँ? ठीक है जी, मैं पहुँचता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच।
कौन है? आ जाओ भाई। ओ इजाज मियां, आओ बेटे, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। सर वो घर किसने सेट किया है? इरफाना ने। क्या अर्ज करूं सर, बड़ी जहमत की उन्होंने। चाबी रखने का ये मतलब तो नहीं था कि वो इतनी जहमत करें। इसमें जहमत की क्या बात है? लड़कियों के तो काम ही होते हैं मोरे खानादारी। लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सुनो, कैसी गुजर रही है? एक मतलब तुमने इंडिया जाहिर किया था कि CSS के इम्तिहान में बैठोगे, तो क्या अपियर हुए थे? सर बाद में मैंने इरादा तर्क कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं सर कि अगर मुझसे मातहती नहीं हो सकती तो अफसरी भी नहीं कर सकता मैं। इसलिए मैंने उस नाजुक शाख पे आशियाना बनाने की ख्वाहिश ही तर्क कर दी। मौजूदा काम से मुतमईन हो? गालिबन जोश साहब ने कहा था कि इत्मीनान, सकूत, ये तो मौत की अलामतें हैं, और मैं जिंदा रहना चाहता हूं। जीते रहो। शुक्रिया सर। ले भाई। और शक्कर? मैंने डाल दिया बशीर। आपकी तैयारी में 2 चमचे और इनकी तैयारी में 1 चमचा। तो मैं चलो ले सर आप। सर चाय का क्यों तकल्लुफ किया आपने? चाय का तो मैंने कहा ही नहीं था। यह हमारे घर की रवायत है कि कोई मेहमान आए तो चाय ना सही तो 2 घूंट पानी पिला के भेजते हैं। लेकिन मैं मेहमान तो नहीं सर, मैं तो अदना सा शागिर्द हूं आपका। वाकई मैंने ये गलत कहा। तुम मेरे अदना शागिर्द नहीं, मेरे आला तरीन शागिर्दों में से हो। और एक बात और, कि आइंदा तुम अपने आप को शागिर्द नहीं, इस घर का फर्द समझोगे। माइंड इट, ये मेरा हुक्म है। हेलो वदूद जी। जी जी आप होल्ड कीजिए, मैं बुलाता हूँ। जी वो प्रोफेसर साहब का टेलीफोन आया है, होल्ड करा कर आया। अब्बा जी, में किसको फोन? सर वो आपका टेलीफोन आया है, होल्ड करवा कर आया। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। जी जी, ज़रूरतन बोल रहा हूँ। देखिए, मैडम समदानी ने जो कवायद लड़की के बारे में आपको बताए हैं वो सब दुरुस्त हैं, और गलत बयानी से काम लेना हमारा शेवा नहीं। जी, लड़की की उम्र, तालीमी काबिलियत, ये सब तो आपको पता ही है, और तस्वीर आपने देख ली है। जी जी, आप आना चाहते हैं बसर जज, तशरीफ लाइएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ ले। इंटर कर रखा है लड़की ने, और BA में से खुद करवा रहा हूं प्राइवेट। कॉलेज ना जाने की मुख्तलिफ वजूहात। बाय द वे, लड़का क्या करता है? देखिए, धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी ये सब अपनी जगह, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन तालीमी काबिलियत भी अपनी जगह, और शराफत भी एक सलाहियत है।
प्रोफेशन एक जरूरत का तकाजा है। आप आना चाहते हैं तशरीफ लाइएगा। कब आएंगे आप? कितने बजे? मैं आपको मुंतजर रहूंगा। जी 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 ठीक। शुक्रिया जाजी। देखो बेटे, जब कोई बच्चा बाप की शफकत से महरूम हो जाए तो माँ को बाप के फराइज अदा करना होते हैं, और बहन ही इसी तरह। अगर कोई औलाद माँ से महरूम हो जाए तो बाप को वो जिम्मेदारियां संभालना होती हैं। बेटे, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम्हारी माँ भी। मुझे वो बातें भी तुम्हें बताना होंगी जो तुम्हारी माँ का हिस्सा थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो बेटे तुम्हें मशरूबात पेश करने के बहाने उनके सामने पेश होना होगा। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि ये बातें तुम्हारे और हमारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन बेटे बहुत सी बातें जो हमारे मिजाज के खिलाफ होती हैं हमें करना पड़ती हैं, और यही कंप्रोमाइज है। बेटे, कंप्रोमाइज के बगैर जीना महाल है। देखिए जनाब, हम बुरा नहीं मानते, हम तो ये जानते हैं कि सोसाइटी जो है ना वो एक बाजार की तरह है, और इसमें वो घर जहां बेटियां होती हैं जवाहरात की एक दुकान की तरह है, जिसमें बेटी हीरे की कनी या पत्थर की तरह होती है। लिहाजा जिस ग्राहक का जी चाहे वो आके इन्हें देख सकता है, और ये दुकानदार पर भी लाजिम है कि वो ग्राहक की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इन हीरों की नुमाइश करे। अब ये ग्राहक के सवाबदीद पर है कि वो इन्हें कबूल करे या मुस्तरद कर दे, और जरूरी नहीं कि वो ग्राहक ही हो, वो महज एक तमाशाई भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नाराज होने की क्या बात। ये तो आपका शुक्रिया कि आपने फोन करके अपनी राय से मुतला कर दिया। कोई कर्ज थोड़ी था आप पे कि आप माजरत करते। शुक्रिया। तो इजाज़ मियां, क्या शेर पूछ रहे थे? कुछ नहीं सर। अरे मुझे इंतजार में देखकर तुम डिस्टर्ब हो गए। बेटे, ये जिंदगी का प्रोसेस है। नाम हर मौज में है, हल्का सदकाम निहंग। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। अली, यार कुछ हेडेक सा हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। कोई मैसेज या रिपोर्ट हो तो मुझे फोन कर देना। वैसे मैंने अकबर से भी कह दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल दूंगा। ये लो। थैंक यू। हेलो, सॉरी जी, वो एक काम से वापस आया था, कोई चीज भूल गया हूँ। देखिए, आप मेरे लिए इतनी जहमत करती हैं, प्लीज इतना तकल्लुफ ना किया करें। सुनिए, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। कुछ नहीं। सुनिए, वैसे तो जी आपने घर की हर शय को निखार दिया है, लेकिन इस गुलदस्ते ने पूरे घर को महका दिया है। इरफाना, एक
बात तो बताओ, ये इतने सारे रंग क्यों जमा कर देती हो तुम? क्या इसलिए तो नहीं कि तुम जानती नहीं कि मुझे कौन सा रंग पसंद है? बोलो, कुछ तो कहो। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं क्या? खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है। देखो इजाज मियां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मशरकी तहजीब में बुजुर्गों के करने की होती हैं, या फिर जिनका आगाज बुजुर्ग करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे अपना बड़ा समझ के बताओ। सर आप बताएं, कोई खिदमत हो तो बताएं, मुझे अपना छोटा समझकर बताएं। मैं समझता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और तुम वादा करो कि जो मैं कहूंगा तुम करोगे। सर आप हुक्म करें। देखो, तुम मुझे सर ना कहा करो, बल्कि सर की बजाय अब्बा जान, अंकल, चचा या खालू जान, जो भी मुनासिब समझो कह सकते हो। मैंने तमहीद बांधे बगैर अपना मुद्दा बयान कर दिया है, अब जवाब तुम्हारे पास है। सर मैं सोचकर जवाब दूंगा। मशवरा करना है किससे? क्या? नहीं सर, मशवरा करना होगा तो आप ही से करूंगा, लेकिन मेरे रास्ते की कुछ रुकावटें हैं। तो मुझे याद पड़ता है इजाज मियां कि किसी लड़की को तुम पसंद करते थे और फिर किसी हादसे में उसका इंतकाल हो गया, और हाँ, शायद तुम्हारी मंगनी भी हुई थी उससे। कहीं उसी लड़की की याद तो तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन रही? पता नहीं सर, लेकिन उसके बाद मैंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। तो आप सोच लो बेटे। सर मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हेलो वदूद। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस कुछ सोच रहा था। यार वो अपने प्रोफेसर साहब है ना, बहुत शफीक इंसान है। इरफाना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, बस यार मैंने सोचा है कि ऐसी लड़की और ऐसे बुजुर्ग नसीबों ही से मिलते हैं। हाँ बस कुछ ऐसी बात है, और मैंने ये फैसला किया कि मैं जाके उन्हें अभी मुत्तला करता हूं। नहीं नहीं, खुशखबरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता और इसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ देखो, हाँ ओके, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जी वो
प्रोफेसर साहब हैं? आइए। तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। बैठ जाओ। कौन है ये? पड़ोसी है, शागिर्द है मेरा। समझ। क्या करते हो? साफ ही हूँ। खबरें लगाते हो? रंगला है बेचारा। पहले प्रोफेसर से तो निपट लो। तुम ऐसे करो, इन पे नजर रखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ठीक है। जो कुछ करना है जल्दी से करो, बाहर रोड पे पेट्रोलिंग हो रही है। हाँ, तुम खिड़की से सड़क पे नजर रखो, सड़क साफ हो जाए तो बताना। देखें जी, ये किसी सरमाएदार का घर नहीं है, ये एक पढ़े लिखे आलिम फाजिल आदमी का घर है। तुम इस आलिम फाजिल से ही पूछो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, आप ही बताएं क्या बात है। बेटा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें बताना चाह रहा था। जनाबे वाला, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मेरी निगाह जवान है। उस दिन गर्मियों की तपती धूप से बचने के लिए मैं भी औरों की तरह घर में दुबका बैठा था कि अचानक मैंने एक मर्दाना चीख की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो मकतूल खून में लथपथ अपने बचाव की कोशिश कर रहा था, और ये शख्स ये खंजर पे खंजर मार रहा था। जनाबे वाला, पहले मैंने चीख मारकर इसे रोकने की कोशिश की, फिर जब मैं घर से गली में आया तो देखा कि यह शख्स गली के आखिर में खड़ी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बाद आज मैं इसे देख रहा हूं। इस चेहरे पर आज जो मासूमियत है, उस दिन इससे भी ज्यादा मकरूह था। क्यों गए प्रोफेसर? बताता क्यों नहीं? हाँ, भूल गया कि तूने मेरे शेर जैसे भाई को फांसी दिलवाई थी और फिर यहाँ भाग आया। याद है मुझे, मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मैंने तो कानून की मदद। कानून? तो बुलाओ अपने उस कानून को, आज तुझे बचा ले। साथ उठाने को कुछ भी नहीं है यहाँ। क्यों प्रोफेसर? कुछ भी नहीं? ये ले लो, इन्हें छोड़ दो, ये ले लो। लो लो भाई, प्रोफेसर की दौलत तो खुद बोल पड़ी। देखते क्या हो, उठा लो उसे। किसी पे शक? इस मुल्क के तमाम डाकुओं पर शक है, सबको गिरफ्तार कर लें, कर सकते हैं। एजाज साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। इसी बात का तो अफसोस है, वरना मैं आपके पास ना आता। तो हमने आपकी मदद करने से कब इनकार किया? सिर्फ रिपोर्ट लिखने की हद तक मदद करते हैं आप लोग। आप लोग ये रिपोर्ट लिखने का धोखा खत्म क्यों नहीं कर देते, ताकि हम जैसे शरीफ आदमी अपनी हिफाजत का कोई और बंदोबस्त कर सके। अब मैं आपसे क्या कहूं, अब खुद होश में नहीं। ठीक कहते हैं आप, सच बात सिर्फ पागलपन और बेहोशी में की जा सकती है, होश व हवास में नहीं। एजाज साहब, अब आप कुछ बताएंगे तो कुछ होगा। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं कि इल्हाम हो। कोई ना कोई सिरा तो चाहिए होता है। आप इस फील्ड से अटैच होने के बावजूद चाइना जैसी बातें करते हैं। आई एम सॉरी जी।
हाँ बेटे, कुछ पता चला? सर, हौसला कीजिए, कोशिश हो रही है। झूठ मत बोलो। क्यों तसल्लियां देते हो मुझे? ये क्यों नहीं कहते कि मैं बेबस हूं, पुलिस बेबस है, हम सब बेबस हैं? सर, ऐसी बात नहीं है। तो और क्या है? कम से कम जी भर के मुझे रो तो लेने दो। चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता तो सकूं ये कि मैंने निहत्था होकर कानून की मदद की है और कानून लैस होकर भी मेरी कुछ मदद नहीं कर सका। आप क्या समझते हैं? मुझे तो कोई हादसा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर, मर्द चीखता नहीं, लड़ता है। हमें खुद को एक लंबी जंग के लिए तैयार करना है। तो मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। बहुत अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल आपकी डिमांड के मुताबिक। लड़का लेक्चरर है, मिडिल क्लास के अच्छे शरीफ लोग हैं। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। मैंने उन्हें कल शाम का टाइम दिया। आपका क्या ख्याल है? इरफाना तो वो तो क्या हुआ सर? रिश्ता आया है मेरी बेटी का। हौसला कीजिए, खुद भी आ जाएगी वो। इतना कमजोर तो मैं कभी भी नहीं हूं। जंग करता आया हूं पूरे जिंदगी से, बुराइयों से, जहालत से, झूठ से। ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूं। सर, आप नहीं हारे, जंग तब शुरू हुई है। अब के म्यार तब्दील हो गए। सारी उम्र मैं सच पढ़ाता आया हूं, लेकिन अब जाके मालूम हुआ कि झूठ ज्यादा ताकतवर है। नहीं सर। हाँ बेटा, हाँ, मान जाओ और मेरे दूसरे शागिर्दों को भी जाकर समझा दो कि अगर कभी सच बोलने की जरूरत पेश आए तो सिर्फ उसी वक्त बोलें जब खुद उन्हें जरूरत हो, किसी दूसरे के लिए नहीं, कभी नहीं। मैंने तो उसी रोज कह दिया था, ये थाने सिर्फ रिपोर्ट लिखने के तक काम कर सकते हैं, बस। देखें जरा सर, अगर तो वो इस शहर में है तो किसी भी लम्हे हमारी पकड़ में आ सकते हैं। हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। इनका सारा असासा इनकी बेटी है। हाँ, बोल रहा हूं। कंफर्म? कहाँ? हाँ, ठीक है, हम तुम्हें पिक करते हुए चलेंगे। उनका पता चल गया? वो हम आपके साथ चलें सर? मुझ पे यकीन नहीं है क्या? है सर, लेकिन फिर भी। ओके, कम ऑन, चलें सर।
इरफाना बेटे बात करो, कुछ बोलो बेटे, बोलो, चीखो, फरियाद करो। इरफाना कुछ तो कहो। बेटे तुम ही बात करके देख लो, शायद तुम्हारी बात मान ले। इरफाना, हादसा, सानहा, वाकया, ये सब चीजें जिंदा इंसानों के साथ पेश आती हैं। मुर्दा कभी किसी हादसे का शिकार नहीं होता। हादसा जिंदगी का हिस्सा है इरफाना, और इस गम, दुख और कर्ब में तुम अकेली नहीं, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। तुमने कहा था ना, खामोशी की भी एक जबान होती है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी जबान। हाँ इरफाना, मैं तुम्हारा सारा दुख समझ रहा हूं, और बांटना चाहता हूं ये दुख। मुझे अपने गम में शरीक कर लो, क्योंकि अब तुम और मैं अलग अलग नहीं, एक हैं हम। इरफाना, पता है उस रोज मैं बजान से क्या बात करने आया था? कि अज़राए मेहरबानी मेरे सर पे अपनी शफकत का हाथ रखते हैं। मैं खुद को उनकी गुलामी में देने आया था। इरफाना, मैं आज फिर वही बात दोहरा रहा हूं, या तो मुझे तुम अपने सर का ताज बना लो, या फिर मेरे सर का ताज बन जाओ, और भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था इरफाना। और याद रखो कि इसमें कोई हमदर्दी का जज्बा शामिल नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हें, मोहब्बत करता हूं तुमसे। जितना रो सकती हो रो लो। वो इस सिलसिले में तुमसे पहले की बात की थी। जी हाँ। हमने ऐसा ही करना ही पड़ता है। जी अगले महीने की 17 तारीख को जुमे का दिन है। क्या ख्याल है इस दिन के बारे में? बहुत मुबारक दिन है सर। सर हो, आई एम सॉरी अब्बू, बेटे, ये 17 तारीख जो है ना, ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए और एजाज के लिए अहम तरीन तारीख है। बेटे, बहुत सी बातें पूछने की नहीं, समझने की होती हैं। फिर भी कहते हैं शर्म में शर्म नहीं। मैंने तुम्हारे मुंह से एजाज के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनी। तुम्हें पसंद है ना? वैसे आज के दौर में भी इतने अच्छे इंसान पाए जाते हैं बेटे, सबूत की जरूरत नहीं। ये दुनिया अच्छे लोगों से ही कायम है, और मुझे खुशी है कि तुम मुतमईन हो। मुझे ऐसा ही दामाद मिला है जो मेरे ख्वाबों में था,
जो तुम्हारे काबिल हो सकता था, जैसा मैंने सोचा था। अब बेटे वक्त कम है, हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। चलो जल्दी तैयारी शुरू कर दो। अकेली? तो क्या इजाज को शॉपिंग में शामिल करना चाहती हो? नहीं, मैं मतलब है आप। तो चलो ठीक है, हम तुम मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। मैं हूं तो ओल्ड फैशन का, लेकिन अब ऐसा भी गैर गुजर नहीं। चलो फिर हम चलते हैं। और तो 1 2 3। सॉरी, अब्बा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने हमसे छुपना क्यों शुरू कर दिया? बस हमारी मर्जी। देखिए वो हमारी भी तो मर्जी है कुछ। जी नहीं, 17 तारीख के बाद। उफ, खुदाया, इतनी लंबी सजा, कुछ कमी नहीं हो सकती सजा में? जी नहीं। चलें, ठीक है, जो हुक्म है हाकिम। सुनिए, अब बैठिए ना, अब आते ही होंगे। जी नहीं, अब नहीं, 17 तारीख के बाद। हेलो जी, नसीम साहब, कैसे मिजाज है सर? ठीक ठाक? जी हाँ, ठीक सुना है आपने। बस नसीम साहब, वो जिस तरह जिंदगी और मौत का एक दिन मुकर्रर है ना, तो मेरा ख्याल है कि शादी का भी एक दिन मुकर्रर है। जी नहीं,
वैसे तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, सब कुछ सादगी से हो रहा है। जी हाँ, अलबत्ता शादी के बाद दोस्तों की दावत ड्यू। जी आइए ना कभी, ऑफिस ही आ जाइए। हाँ फोन करके ही आइए। नसीम साहब दरवाजे पे नॉक हो रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। चलें ठीक है, ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। आइए, कहाँ हो? आइए तशरीफ लाइए। बहुत दिनों से नजर ही नहीं आया। खैरियत तो है? वो कर्फ्यू लग गया है। क्या वाकई? तशरीफ रखिए। जी हाँ, 17 तारीख के बाद ये इरफाना का हुक्म है। चलो ये भी अच्छा है। बेटे जितना फासले से मिलोगे उतना ही मोहब्बत बढ़ेगी। जरा हाथ तो सामने करो। मैं अंगूठी लाया था, नाप तो था नहीं मेरे पास। अरे तो ऐसे ही खरीद लाया। आप ये जहमत क्यों कर रहे हैं? वो काम भी आपको करने पड़ रहे हैं जो आपके करने के नहीं। मियां, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि ये काम करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी बात तो सुनो। इरफाना, वो देखो पहाड़ की चोटी पे आती बहार है ना, बर्फ पिघल रही है।